वाले डायलॉग्स जो घाघरे में धूमधाम, बिकिनी नहीं टिकनी, ये आपने लिखे हैं ना? कहानी में जो पेन होता है वो आप इंटेंशनली डालते हो या हम है जो ढूंढ लेते जो पेन है. डोंट ऑलवेज ओबे. आई फील डोंट ऑलवेज, इट्स वेरी बोरिंग. ऐसे करूंगा तो अच्छा नजर आऊंगा, मगर उसका किसी को कोई फायदा नहीं होता है. I think I'm falling in love with yours. हाँ मानिनी जी, हाँ. गुड इवनिंग सर, माय नेम इज मानिनी. सर, इस इंडस्ट्री का हिस्सा होते हुए इतने सालों तक जो सरलता, जो ऑनेस्टी, जो रूहानियत और जो सच्चाई है आपके काम में, वो हर फिल्म में रिपीट होती है. एंड दैट इज सच अ ब्यूटिफुल कंसिस्टेंट ट्रूथ दैट रिमाइंड्स पीपल लाइक मी that being true to yourself is a wonderful thing. So I think seeing your movies and always understanding your plots, as you rightly said, intelligence नहीं होती, वो divine interventions होती हैं. जब आप एक जरिया बनते हैं, you're an empty vessel and the divine channels through you. So आपकी हर फिल्म में सर, आपके हर इंटरव्यू में मुझे वो डिवाइन प्रेजेंस दिखती है और वो सच्चाई दिखती है कि जिस तरह की थैंक यू सर, थैंक यू. और जिस तरह से आप अपने कैरेक्टर्स को बिल्ड करते हैं सर, उनके अंदर जो हम सब फ्लॉड है, वी ऑल फ्लॉड राइट, बट द वे यू सेलिब्रेट दैट इज सो ब्यूटिफुल. आपको खुद से मोहब्बत हो जाती है व्हेन यू सी दोस कैरेक्टर्स बीइंग लव्ड फॉर देयर फ्लॉज एंड नॉट एज फ्लॉज बट एज जस्ट समथिंग दैट दे वर बोर्न विद. सो थैंक यू वेरी मच सर for being part of this generation, for telling us be honest, और आपको फिल्मी होने की ज़रूरत नहीं है to be accepted or for your talent to be recognized. Thank you so much. Wow. Thank you so very much. हेलो सर, माय नेम इज़ निहारिका. मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ जिसे पहली बार तमाशा पसंद नहीं आई थी, बट अब मैं लोगों को कन्विंस करती हूँ कि वाई इट्स सच अ ग्रेट फिल्म. सर, आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट ताराज जर्नी. मतलब कॉर्सिका से पहले वो किस जद्दोजहद में थी, बिकॉज एक अकेली लड़की सोलो जर्नी पे निकली है इतनी रिमोट कंट्री में. आई एम श्योर शी वाज गोइंग थ्रू समथिंग. सो इसका बहुत बोरिंग जवाब है. Her father was an industrialist. She had come to Paris for some work to do with her father. But after having come to Paris, she remembered that Corsica is 1 flight or 2 flights away. And she thought she has the time and the money to do this because it was her favorite comic book. So she came. तारा का पूरा नाम क्या था? Yes, ये मेरा. This Ida said, Ida is here. Please get up and This is Imtiaz Ali sir's daughter. Give a big round of applause for Ida. she has the distinction of turning 11 at 11:11:11. But she said that you know what his name is. What was Tara's surname? She asked me when you were performing. Oh wow. Then I got the connection. I was saving it for the end. यार तूने खराब किया. Damn. हाँ प्लीज माइक उस पे है, एक हेड आ रहा हूँ. My name is Rehana and I'm a huge fan. सब है, even I'm a huge fan. I'm sure there are a lot of filmmakers who look up to you and you are our inspiration. I would like to know who is your inspiration. And my second question is, I'm also an aspiring filmmaker. What is that advice you'll give it to us so that we can also become the Veds and follow our journey? I'm shivering right now. I'm a digital marketer and writing scripts and doing my bit. So yeah, it's an opportunity to see you here. Yeah. My advice to all prospective filmmakers, creative people, corporate people, mathematicians, scientists, and all categories of humans is to watch Tamasha. Then you should revisit sir. I'll look into the matter. We'll get back to you. Of course, I would love to. Okay.
escalated. इधर भी ले लेना बात। matter, yes. वहां से इधर आते हैं। But I'd like to tell you, girl in yellow, what's your name again? So sorry. Riya. In the yellow dress. आपने अगर वो सवाल नहीं पूछा होता मैंने वो जवाब नहीं दिया होता. Thank you, Riya. Thank you. Hello, sir. My question is about Tara again, but it's not about her backstory. If Tara is a woman who has so much conviction, why is she also not changing things for herself? जैसे अगर आप सिर्फ तारा की जर्नी देखें, सो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वुड रिलेट विथ वेद. स्टार्टिंग में भी सब बोल रहे थे, लक्ष्य भी बोल रहे थे कि 4 थे 40 बन गए, कितने वेद हैं यहाँ पे. तारा is more than just a catalyst in Ved's story. She's more than just an enabler. Right. तो भले उसकी बैक स्टोरी कुछ भी रही हो, बट इफ यू सी हर आर्क, तो वो भी एक तरह की एक मंडेन लाइफ में है. मे बी शी लाइक्स वॉट शी इज डूइंग, बट द टाइम पीरियड यू नो व्हेन शी इज नॉट इन टच विथ वेद, वो भी एक बहुत हीर तो बड़ी साइड है, तो वो भी एक मंडेन लाइफ जी रही है. तो वो खुद को रिजरेक्ट क्यों नहीं कर रही है? वो क्यों वेद को खोज रही है? वो यू नो लाइक मे बी शी हैज अदर पैशंस, शी हैज अदर कॉलिंग्स. व्हाई इज शी नॉट लुकिंग फॉर दैट विद इन हर सेल्फ? एंड जस्ट इमेजिन अगर उसको 4 सालों बाद वेद नहीं मिला होता शायद, तो what would have been her fate? She would have maybe gone back to being mundane, or she have stayed like that जैसे भी उसकी लाइफ चल रही थी. So I want you to throw light on Tara's arc and tell us कि तारा जो वो वेद में करना चाहती थी वो खुद में क्यों नहीं कर रही थी जब वो उस पीरियड में थी जब वेद से नहीं बात कर रही थी. और also like is Tamasha 2 coming? That's the question. Is Tamasha 2 coming? Never. Never. सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच इतने लोगों की नौकरी छुड़वाने के लिए. मेरा नाम सर विभोर चौधरी है, मैं मुजफ्फरनगर से हूँ और मैं गांव से बिलोंग करता हूँ सर. बिल्कुल मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा कि मैंने तमाशा देख के ये कर दिया, रॉक स्टार देख के ये कर दिया. नौकरी छोड़ी थी मैंने विद्या बालन की डर्टी पिक्चर देख के, क्योंकि उन्होंने कहा था जिंदगी एक बार मिली है, 2 बार क्यों सोचना. तो मैंने छोड़ दी. उसके बाद मैंने रॉक स्टार देखी, फिर मैंने दोबारा नौकरी छोड़ी और मैंने कहा अब मैं कुछ करूँगा. और सर थैंक यू सो मच, मैं आपसे मिला था कपिल शर्मा शो में, मैं उसमें राइटर हूँ. आप चमकीला की प्रमोशन करने आए थे तो हम बाहर मिले थे और फोटो वोटो लिया. आपने कहा आना कभी और हम मिलते. मैंने कहा मेरे लिए इतना ही काफ़ी है बस. बट आप पे सर एक छोटा सा आरोप है, माफ़ी के साथ चाहता हूँ. आप ऐसी फिल्में बनाते हैं, सोचा ना था, जब भी मैं, तमाशा, रॉक स्टार, ये कहते हैं कि हमने 2 बार देखी, पहली बार समझ में नहीं आती. अरे तुम 4 बार देख रहे हो, उनका बिजनेस बढ़ रहा है. तो आप ये सर जानबूझ के बना, हालांकि वो सवाल आपने दे दिया सवाल का जवाब. थैंक यू सो मच सर. मुजफ्फराबाद के लोग होते हैं, मुजफ्फरनगर के लोग काफी स्मार्ट होते हैं, इन पे जरा ध्यान दिया जाए. अरे ये देश को बढ़ा सकते हैं. इधर तो इन्होंने पकड़ लिया मैं क्या कर रहा हूँ इतनी देर से. नहीं थैंक यू सो मच. आपका जितना धन्यवाद कहा जाए उतना कम है. ये बच्चे तो आपके फैन हैं, इनके माँ बाप बड़े खफा हैं, इम्तियाज अली भटका रहे हैं, पर थैंक यू सो मच, लव यू सर. थैंक यू विभोर जी, थैंक यू सो वेरी मच. एक लास्ट क्वेश्चन ऊपर से भी ले ले, ऊपर से कोई कुछ नहीं पूछ पाया है. Does that Lakshmani said कि he's falling in love with you तो +1. And sir मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि if we want to know इम्तियाज अली personally वो कैसे होगा? प्लीज डोंट स्पॉइल माई इमेज बाय ट्राइंग टू गेट टू नो मी. मेरा इमेज खराब हो जाएगा. ये दूर से ही मैं बेटर लगता हूँ. आई एम गुड फॉर फ्रॉड. इम्तियाज अली यूजुअली मतलब कैसे चिल करते हैं मतलब? फैन मीट्स में जाके. या ऐसे दिस इज चिलिंग फॉर मी रियली. और एक बात और मुझे बोलनी है मैम, आपने जो सवाल पूछा और उसका जवाब देने का टाइम नहीं था. पॉइंट ये है कि जैसे कि आपने वही आप कर रही थी जो आप करना चाहती थी, फिर भी आप तमाशा आपको
बहुत पसंद आई। मैं भी तो वही कर रहा था जो मैं करना चाहता था, फिल्म बनाना और इस तरह से करना। मैंने भी बनाई ना तमाशा, तो ऐसे भी होता है। वाह। आप क्या बोलेंगे? मैं एक सेकंड सवालों पे आऊँ उसके पहले अब सर ने ये बात छेड़ दी है, मेरे पास एक स्पेशल चीज़ है आप सबको बताने के लिए और आपके लिए भी। ये एक सरप्राइज़ है जो मैं एंड के लिए वेट कर रहा था, पर आई थिंक बात आ ही गई है तो वहाँ पर रखते हैं। मैंने क्या किया सर, मैंने कोशिश की आपके इर्द गिर्द सभी लोगों को परेशान करने की। मैंने सभी को फ़ोन लगाए, आपकी मॉम से भी बातें की, सब कुछ मैं ढूंढना चाहता था इम्तियाज़ सर का तमाशा मोमेंट क्या था। वो तब जो उनके लिए स्विच हुआ, किस कारण वो पिक्चरों की तरफ, कहानियों की तरफ आए, मुझे बहुत सारे जवाब मिले। फॉर एग्जाम्पल जब जी टीवी पे पहली बारी इम्तिहान नाम की आपको पहला एपिसोड डायरेक्ट करने को पहली बॉल पे सेंचुरी मारी थी, ये डायरेक्टेड द 100th एपिसोड फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट? तो क्या वो मोमेंट था? नहीं, इसके पहले ऑलरेडी हो चुकी थी चीज़ें। क्या हिंदू कॉलेज में प्रिंसिपल ने जब आपको कह दिया था कि अब तू प्लेस कर बाकी मैं देख लूंगा, क्या वो मोमेंट था? नहीं। मैं और पीछे गया, मुझे मिला, you can tell me whether that's right or wrong, 8th क्लास में थे जब सर, 9th। अच्छा, क्या वो मोमेंट था जब इन्होंने और प्रीति जी ने साथ में जैस्मिन और अलादीन वाला प्ले पे काम किया था? क्या वो मोमेंट था? बहुत क्लोजली था, पर मुझे उसके पहले का एक मोमेंट और मिला। वो मोमेंट ये था कि 9th क्लास तक सर बहुत पढ़ाई में अच्छे थे, 9th में इतने अच्छे नहीं रह पाए, क्योंकि उस दिन ऐसा हुआ कि ये जमशेदपुर शिफ्ट हो गए थे। जमशेदपुर शिफ्ट हुए तो इनके घर के बगल में एक बड़ा सा थिएटर था, करीम टॉकीज नाम का। ये वहाँ थिएटर में जाने लगे, एन जमशेदपुर टॉकीज के बीच में आपका घर था कहीं पर। वहाँ पर इनको फिल्मों का और कहानियों का चस्का ऐसा लगा कि ये हर दिन जाने लगे। तो जहाँ वो रीलें चेंज होती थी ना मूवीज़ की, ये वहाँ बैठने लगे और वहाँ पे जो काम करता था वो कहता था इम्तियाज़ तू ही चेंज कर दे यार, मैं बैठा हुआ हूँ, और वो पीछे बैठकर वो रीलें चेंज किया करते थे। सो फॉर मी आई थिंक दैट वाज योर तमाशा मोमेंट, जिसने आपको कहानियों की तरफ पुश किया और लेकर आए। इज दैट मेकिंग एनी सेंस? Yeah, it's making sense. Only that I'll add a few things. Actually, ये मेरे relatives का घर था, जहाँ पर जब हम लोग वापस जमशेदपुर शिफ्ट हुए थे, तो for some months we lived there, my brother Arif and I, and both of us failed because of the cinema theater. But as before that also, when we were in Jamshedpur before going to Patna, we would go to this house, live here also for many days, and we had the access to go into the cinema theaters like this. तो वहाँ जो projectionist होते थे, not a particular time, but over life for many years, we have been able to get into the cinema theater and watch one song from Sanam Teri Kasam, another song from the other side from Jail Yatra, all these films that you might not even know. तो ये over a period of time था, but I feel that maybe the moment that you're asking me for was that moment when I failed in class and had to repeat it. Oh, So what did me in was the humiliation, the pain. the pain. So for that, जब तक आप एक क्वेश्चन लीजिए, मैं आपके लिए कुछ छोटी सी एक चीज़ आया हूँ। यस, लास्ट क्वेश्चन प्लीज, गो फॉर इट। माइक दे देना भाई। जिसके पास माइक जाएगा वो प्लीज पूछ सकते हैं. सर ये वही रील का डब्बा है। हेलो, Wow. पीछे आपके लिए करीम टॉकीज एंड थैंक यू करीम टॉकीज एट द बैक। और ये जो तीनों वेद दिख रहे हैं, इस पर चेहरा इम्तियाज सर का है। तमाशा मोमेंट। थैंक यू। यस प्लीज। Sir, my name is Anuj, and as like everyone, I'm a big fan of yours, and I'm shivering right now. My heartbeat is very fast. I actually, This is a good condition. या आई गेस सो। कभी कभी ये भी साथ नहीं देता. सबके पास क्वेश्चन है, मेरे पास एक कंप्लेंट है. आपकी मूवीज हमेशा रुलाती है मुझे, हमेशा रुलाती है कहीं ना कहीं. जैसे लक्ष्य नरेट भी कर रहे थे उनकी वो जो मूवी का पूरा स्क्रिप्ट था, और एंड आई वाज क्राइंग, यू कैन आस्क हर. आई वाज टोटली इन टीयर्स, आई वाज शिवरिंग, एंड बिकॉज आई रिलेट टू सो मच. लाइक उन्होंने अपने उसमें वीडियो में बोला था कि प्लीज़ कुछ बन के आना इफ़ यू वांट टू लाइक द कैरेक्टर. मैं सीधा कॉर्पोरेट से ऑफिस बंक मार के आया हूँ. 7:30 बजे मेरा बंद होता है, मैं 6:30 बजे बिना बोले निकल गया. So आप वेद बन के आए. या एग्जैक्टली, मैं वेद हूँ कह सकते हैं. और मुझे लिखना पसंद है. लाइक अभी मैं कॉर्पोरेट में घुसने के बाद मैंने कुछ नहीं लिखा, लिटरल कुछ नहीं लिखा. तो मैंने बहुत पहले तमाशा पे कुछ लिखा था,
वो मैं सुनाना चाहता हूँ आपको, इफ द फन इज लाइक आई गेट योर परमिशन। वो वेद है तमाशा का, उसे तारा की तलाश है। वो वेद है तमाशा का, उसे तारा की तलाश है। खो चुका है वो सपने अपने, मिल जाए उसे कहीं, ये भी एक आस है। वो वेद है तमाशा का, उसे तारा की तलाश है। ढूंढ रहा है वो रूह को अपनी, ढूंढ रहा है वो रूह को अपनी, खबर नहीं उसे, ये तो उसी के पास है। वो वेद है तमाशा का, वो तारा की तलाश है। इसका जवाब दे दूं शायरी का। वो झंड फकीर मत बोलना। जो मैंने बहुत सालों पहले लिखा है। डूबता रहा खोकर खुद को, फिर खुद ही में झांक कर देख लिया किनारा, मैं ही वेद और मैं ही तारा। डायरेक्टली बोल दूं? तो दिस इज आउट ऑफ इंस्पिरेशन दैट वी ऑल हैव। तमाशा ने मेरी लाइफ बदली है और इन सबकी बदली है। मैं अभी तक फंसी हुई कॉर्पोरेट में। आई एम अ ट्रैवल प्रोफेशनल, मैं अभी तक नहीं निकली हूँ। लेकिन ट्रैवल में भी बिकॉज सर के मूवीज ट्रैवल ओरिएंटेड होते हैं, मैं अपनी खुशी ढूंढ लेती हूँ। सो थैंक यू सो मच। वी आर स्टिल नॉट आउट ऑफ इट बट वी आर स्टिल लिविंग इट। थैंक यू वेरी मच फॉर द इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। एंड सेकेंडली मेरा एक सवाल है, आपने किसी टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यू में बोला गया कि तमाशा का एक ऑल्टरनेट क्लाइमेक्स था, जो आपने उधर बताया है किसी को कि अगर वेद और तारा यूनाइट नहीं होते, रीयूनाइट नहीं होते वापस, और वेद वुड बी डूइंग हिज शो बट तारा सीक्रेटली वॉचिंग हिम, सीक्रेटली उसके शोज देखती है, तो क्या ये क्लाइमैक्स ये तमाशा होता? मतलब ये आपको यहाँ बहुत सारे लोग बता देंगे, मगर एक बात मैं बोलना चाहता हूँ। देखो क्या है ना, डोंट वेट फॉर टुमारो टू बी हैप्पी, टू बी फुलफिल्ड। आप जर्नी में हो, ख़त्म होगी, मैं फंसी हुई हूँ, सब लोग, आप बाद में, मैं भी फंसा हुआ हूँ। मैं तो फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, फिल्म में हर आदमी कहीं ना कहीं फंसा रहता है। कभी कोई वैसे मुकम्मल जहां नहीं मिल हुआ, ऐसा कहते हैं ना। तो उसका वेट मत करना कि ये होगा तब मैं ऐसा करूँगी, खुश हो जाऊँगी, खुश हो जाऊँगा, ये सब तब मुझे हासिल हो जाएगा। कभी कुछ हासिल वो फीलिंग कभी नहीं आएगी। यस हो गया, ये कभी नहीं होना चाहिए। Journey never gets over, the story never gets over. Do it now. Try, keep trying, make it better. It will get better. Like, you know, Manthan is here, he's making it, but the journey will not get over. Please choose now as the moment that you want to enjoy yourself and feel yourself. Sir, question, at what time आप बहुत सारी कहानियों को you know, you're thinking about it, what time you feel कि अब इस पे पिक्चर बननी चाहिए? What's that moment for you out of कि यार now this is the time where I have to make? I don't have an answer for this, yaar. It always happens differently at, you know, for different films. I feel sometimes when you're like for Socha Na Tha, I'd written the story already, and after that I thought let's make a film. Sometimes you know, you are working on something and an idea comes and you feel that ये पूरा script खत्म हो गया, but now let's make the film. So there is no particular point, and it's not as though again वो moment नहीं आता है कभी कि अब समझ में आ गया कि अब मुझे ये film बनानी है. I find myself making the film actually. Start it and then you don't even start it consciously actually. You just keep talking. Then you feel that why am I talking about this particular figment of my imagination again and again. बार क्यों यही बात कर रहा हूँ? लगता है मुझे, मतलब मैं ढूंढ रहा हूँ लोगों को, जैसे वो ऑटो रिक्शा वाला सीन था ना कि आप ढूंढते हो फिर उससे ही बात करते रहते हो. आज माई नेफ्यू इज स्टेइंग विथ मी, आरिफ सन. टुडे बेचारा एग्जाम देने को है, उसके पास 10 मिनट थे, मैंने उसको 2 कहानी सुना दी. So आप ढूंढते हो लोगों को, और ऐसे करते करते फिर then you realize you're already writing, you're already now shooting and the film is released. ऐसे होता है सर. कहानी चूज कर लेते हैं ना वे. Then therefore that's if you don't choose the story can choose you. Hi sir, my name is Kabir. कबीर के नाम पे यार, one of the greatest guys that we've had in this country, the great Kabir Das. कबीरा.
मेरे फ़ोन के वॉलपेपर पे आपकी फ़ोटो है जो मैंने अभी रिसेंटली कुछ समय पहले एक इवेंट पे खींची थी। एंड मैं जितने भी आपके इंटरव्यू देखता हूँ आपकी ब्लैक शर्ट हमेशा आप यही पहनते हो। सो सर ये ऐसा कुछ कि आप कोई आपके लिए कोई लकी शर्ट है या फिर व्हाई इज़ इट ऑल गरीबों को मजाक मत उड़ाएगा। तमाशा में एक सीन है जिसमें वेद आता है तारा के घर वेंट आउट करने के लिए और तारा उसको अंदर बुला रही होती है और वो बाहर खड़ा होके वेंट आउट करता है। आई थिंक दैट्स लाइक क्रिएटिव एक्सेलेंस है वो। रियली अप्रिशिएट कि उस सीन में पता है क्या हो रहा था? रणबीर एंड आई हैड दिस पैक्ट दैट एवरी टेक कैन यू डू इट ऑनेस्टली, लाइक विल डू इट ऑनेस्टली इन द वे दैट हम भी कभी कभी एक्टिंग करते हैं, जितना भी बोले हम जो मन में आएगा करेंगे, पता नहीं प्लान नहीं करेंगे, बट हम तो उसी रास्ते पे चलते हैं ना, हम उसी ब्रीफ के साथ चलते हैं कि हमने उस वाले शॉट में ऐसा किया था या कुछ एक ब्रीफ लेके चलते हैं मेंटली। तो हमने कहा था कि नहीं, हम एकदम प्योरली ट्रूली करते हैं, खराब कर देते हैं इस सीन को। बट एक सीन हम प्योरली करते हैं कि एकदम भी प्लान मत कर। सो यानी कि एक टेक में कुछ और ही किया उसने और दूसरे टेक में कुछ और ही किया। मैं उसको हर टेक के पहले एक अलग तरह से ब्रीफ भी करता था। सो इट वाज जस्ट लाइक डिफरेंट सीन्स, डिफरेंट फिल्म्स में भी। So don't worry about it. Don't worry about consistency or form. Let's see what happens. This scene happened with you. इट्स टोटली एक्सेलेंट सीन सर। लाइक वो वेंट आउट करना और उसका तारा को अंदर बुलाना मतलब दिल को छू गया डिफरेंट लेवल। सो मेरा जो क्वेश्चन था वो कि आप क्रिएटिव एक्सेलेंस सर, सो आप क्रिएटिविटी और कहीं पर बात करने में आपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी बोला। सो क्रिएटिव एस्पेक्ट और फाइनेंशियल एस्पेक्ट के बीच में हाउ डू यू डील विद दैट? दो पार्टन के बीच में साबुत बच्चा ना कोई। कबीरा यार, ये दीन और दुनिया साथ में चलती है। जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप इस चीज़ से क्वारल नहीं कर सकते कि मुझे खाना भी खाना है, खाना है तो पैसे भी कमाने हैं और कपड़े भी पहनने हैं, और अगर मैं स्विट्ज़रलैंड जाना चाहता हूँ छुट्टी पे तो उसके लिए और भी ज़्यादा पैसे कमाने हैं। जितनी जिसकी इच्छा हो उतना वो कमा सकता है, संविधान इसकी इजाज़त देता है। सो द पॉइंट इज़ दैट यू हैव टू बैलेंस इट आउट, है ना? मतलब यू हैव टू, मतलब देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। योर बॉडी विल मेक इट बैलेंस्ड एंड इट्स गुड, इट्स राइट, देयर इज़ नो शेम इन दैट। You've got to survive. You don't, and you should survive so that you can prosper and then do what you want to do even more. And please, जो भी आप जितने भी लोगों ने नौकरी छोड़ी है तमाशा देखकर या dirty pictures देखकर, कुछ भी देख आप, मगर उन लोगों से मेरी खास करके गुजारिश है कि भाई be successful, be a good example. पहली बार जब ये हादसा मेरी ज़िंदगी में हुआ था कि मैं रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था और एक आदमी बहुत तेज़ी से उस दूसरे रेस्टोरेंट से अक्रॉस द स्ट्रीट आ गया ओशिवारा में, और मुझे लगा कौन है ये, मैं छुपूं, भागूं, क्या करूं? और वो आके बोला आई लेफ्ट माई जॉब। आई सेड तो हाँ, तो आई सेड तू नहीं छोड़ा या निकाला गया टाइप में मुझे लग रहा था। और वो बहुत इमोशनल था और बहुत पैशनेट था, और उसने कहा कि मैंने तो तमाशा देख के, पहला बंदा तमाशा देख के जॉब छोड़ दी। तो मैंने बोला भाई बहुत मेहनत करना, मेक अ सक्सेस आउट ऑफ योर सेल्फ, अदरवाइज यू विल कम लाइक दिस लुकिंग फॉर मी दैट इट इज बिकॉज ऑफ दिस गाय दैट आई एम इन पेन। The point is, please bring, ये जो सवाल है ना, please bring success to your endeavor. If you don't bring success to your endeavor, you're not inspiring other people to be able to do it, यार। करेक्ट। और इतनी छोटी सी चीज़ के लिए, पैसे के लिए कमा लो यार, क्या प्रॉब्लम है? वो तो ऐसे ही कमा लोगे आप ना। So there's no shame in that. Please balance it out. If some people have, एक तो
कभी कभी किताबें भी पढ़ लिया करो, किताबें भी अच्छी चीज़ होती हैं। तो आप जब कभी ना कोई जैसे होमर हो एक राइटर या जिन्होंने ओडिसी लिखी थी, जिन्होंने हेलेन ऑफ ट्रॉय का वर्णन किया था, हाँ, तो उनकी कोई भी किताब आप कभी भी पढ़ोगे या बहुत सारे ऐसे जो पुरानी स्टोरी टेलर्स की रिकॉर्डिंग्स आप या देखते हो ना, उसमें हमेशा ये होता है वो कहानी कहीं से ऐसे शुरू करने की कोशिश कर रहा है बंदा जो राइटर है, और उसके बाद वो कहता है कि ओके गॉडेस इंस्पिरेशन तारा मेरा हाथ पकड़ ले चल वहाँ जहाँ पे मैं कहानी कह सकूँ, उस जोन में ले चल। So you need that inspiration, that muse. That muse is also a part of you. Like in this case, it was a girl. It could have been not a girl. It might not have been a romantic story in the way of like a boy and girl getting together. It could have been anything. It could have been an aspect of his own personality. But that inspiration that takes you beyond your mundane is important for that person to become who he is. And is also a part of that person. It's like yin and yang. ये नहीं So as you said very rightly that ये सिर्फ वेद की कहानी नहीं है जिसको तारा ने इंस्पायर किया, ये उन दोनों की कहानी है। बल्कि आपने पूछा कि इफ आई एम राइट, आपने मुझसे पूछा था, आई फील दैट जो सबसे पहले आपने कहा ना कि ये कहानियों की कहानी है, ये तमाशे की कहानी, तमाशा है। तमाशों का तमाशा। एक रील आया था दैट अगर तुम साथ हो वाला जो सॉन्ग है उसमें वेद वेयर्स द ड्रेस या ये तो पता ही है, लोग ऐसे बोल रहे हैं यार ये तो पता ही है हमें क्यों बोल रहे हैं। तो लक्ष्य ने ये काम किया था। आपने आज देखा नहीं सर, जो म्यूजिशियंस बैठे थे हमारे साथ ईशान एंड राहुल, वो ब्रेन और आर्ट बनकर आए, राइट? was that the idea of like how did it come out and like is it true, like is that that level of detailing that you did? Yeah. But it's not I. ये बहुत सारे लोग होते हैं यार, वो बहुत मतलब अकीन अरूला could have been responsible. किसी ने भी कहा हो सकता है कि किसी एक्टर ने कहा हो, किसी स्पॉट बॉय ने कहा हो सकता है किसी असिस्टेंट डायरेक्टर ने कहा कोई भी कह सकता हो सकता है मैंने भी कहा हो, मगर ये उस टीम ने ऑब्वियसली डिसाइड करके कहा था। जैसे कि आपने कहा कि फिर वो अक्सर स्काई नहीं दिखती है, तो आप इस मतलब योर इंटीरियर स्पेसेस में हो या शॉट्स ले रहे हो, उसमें द फीलिंग ऑफ द स्काई इज नॉट देयर। सो ये सारे डिसीजंस लेते हैं लोग, फिर भूल भी जाते हैं, मगर आपने जब कहा मुझे याद आया कि हाँ ऐसा था। So there are lots of things in everything because we have a lot of time when we are doing a scene. So एक सीन करने में अगर 4-5 घंटे लग रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उन 4-5 घंटों में आपके दिमाग में आती है, सिर्फ आपके नहीं बट वो बहुत सारे लोग होते हैं जिनके दिमाग में आ सकती है। मेरे आसपास के लोग अक्सर बदतमीज़ होते हैं तो वो रुकते भी नहीं है बोलने से। सर मेरा नाम जय है और सर मेरा सवाल ये है, सर इस वक्त मैं मेरे लाइफ के इस स्टेज पे हूँ तो बोलना ही, मैं खुद को ढूंढना चाहता हूँ, मेरे बारे में खुद जानना चाहता हूँ। तो मैंने नेक्स्ट मंथ सोलो ट्रैवलिंग करने के लिए डिसाइड किया और मैंने अभी तक का कुछ डिसाइड नहीं किया मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मैं वही जाके सब खुद डिसाइड करने वाला हूँ। कॉर्सिका, मेरा कॉर्सिका इस वक्त बहुत सर महंगा है, कॉर्सिका इज वेरी एक्सपेंसिव आल्सो टू गेट देयर इज सर अभी नहीं अफोर्ड कर सकता, हाँ बट इंडिया में ही गई, बट मैंने अभी तक मेरा डेस्टिनेशन जो है वो हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह तक डिसाइड किया हुआ है। सर मैं आपसे एक सजेशन लेना चाहता हूँ कि मैं खुद को ढूंढने के लिए आपको क्या लगता है मैं कहाँ। अरे इतना टेंशन मत लो यार, खुद को ढूंढ के क्या करोगे, गेट ओवर योरसेल्फ। Whoa! There are other things to look for. और भी चीज़ें हैं। Don't get disappointed in what I am saying, but think about it. और भी चीज़ें हैं जो ज़्यादा सुंदर हैं हमसे, जो इस दुनिया में हैं। You will never find yourself. Because अगर तुमने ढूंढ लिया अपने आप को तो सब खत्म हो जाएगा, है ना? So आज, for the first time, somebody sent me a quotation of Rumi which I hadn't read. और उसमें ऐसा कुछ था, I will not take my phone out and read it or something like that, but उसमें ये था कि whose voice it is it
that is speaking in my mouth? Whose voice is it that I'm hearing in my ear? ऐसा लगता है हमारी है ना? So तुम जो ढूंढ रहे हो, whose spirit is it that is inside you? It is somebody else's. Like it's the universe itself. So what you are interested in is the universe itself. I'm sorry I took time to explain to you क्योंकि तुम थोड़ा सा निराश लग रहे थे. खुद को नहीं, तुम जो मिल जाए उसको ढूंढ रहे हो. Let's put it that way. No, now I'm so sorry we have to finish. So thank you so very much. एक बारी before you guys stand up, एक बारी जितनी ताकत अब बची है ना, सबके साथ तमाशा डे की तरह cheering हो जाए for इम्तियाज सर and तमाशा, ladies and gentlemen. 3, 2, 1.